स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें? Yes, sir. Okay. So let's begin the session. This is lecture number 32 and we have started unit number 5th, network layer part 3. So in the last lecture we have discussed about routing. The definition of routing we have already discussed. Some desirable properties, what we want to achieve in the routing algorithms. So whenever any expert design routing algorithms, what are the objectives of routing algorithms or routing algorithms that are we have already discussed: correctness and simplicity, robustness, stability, fairness and optimality, efficiency. These are some desirable properties which must contain in the routing algorithms. Then various design parameters for routing algorithm. Performance criteria, and performance criteria will be based on number of hops, cost, delay and throughput. So by these parameters we can increase the performance of routing algorithms. Taking a number of hops limited, cost will be limited, delay will be minimum and throughput will be maximum. In this way we can increase the performance of routing algorithm. Decision time, this is the second criteria design parameters of routing algorithms. Which one take decision whether we are working with a datagram approach or virtual circuit approach. So we can use any one approach. Third one is decision place, which node take decision for the next neighbor or a next leg. Maybe each node take decision, maybe central node take decision, and maybe originated nodes take decision. Fourth, network information source, that is the design parameters again. So what kind of information about the network that must contain by the node? It may be none. No one node share the information which are related to the network. Local node can share the network information. Adjacent node share the information about network. And all the nodes that belongs to the root that share the information of network. And all the node that design a network that share a network information. Now it is updating information, maybe continuous taking information about the network update. Maybe it will receive a periodical, maybe it will receive a major load change, and if topology gets changed, then node give the information to the routers, and then router will update the information in routing table. Now let's proceed further. How fixed routing may be implemented? एक फिक्स राउटिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है? A central routing matrix is created based on least cost path. इसमें हम एक सेंट्रल मैट्रिक्स तैयार करते हैं और उसमें हम कुछ वैल्यूज फिल करते हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट पाथ पर डिपेंडेंट होती है. इसी के बेस पर हम उस मैट्रिक्स में पाथ प्रिपेयर करते हैं, which is stored at a network central center, नेटवर्क कंट्रोल सेंटर. और जो राउटिंग मैट्रिक्स होती है वो होती है नेटवर्क कंट्रोल सेंटर में. The matrix shows for each source destination pair of nodes the identity of the next node on the route. मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन हमें यह बताती है, जो भी हम मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें कुछ नोड की इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में पेयर ऑफ नोड्स होते हैं और हर पेयर ऑफ नोड्स में इन्फॉर्मेशन आती है कि नेक्स्ट कौन सा नोड होना चाहिए. सो देखते हैं आप फिक्स्ड राउटिंग एल्गोरिथम्स किस तरह से काम करती है. नेटवर्क कंट्रोल सेंटर में किस तरह से राउटिंग टेबल क्रिएट होती है और कैसे एडजेसेंट नोड की डिटेल उस मैट्रिक्स में फिल होती है.
So fixed routing means a central routing matrix is created based on least cost path which is stored at network control center. फिक्स राउटिंग करने के लिए हमें एक सेंट्रल राउटिंग मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है जो कि लीस्ट कॉस्ट पाथ पे डिपेंडेंट होती है। मतलब हम उसी नोड को सिलेक्ट करते हैं जो कि सबसे कम कॉस्ट वाला हो, क्योंकि हमें लीस्ट कॉस्ट पाथ तैयार करना है, मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ तैयार करना है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो नेटवर्क कंट्रोल सेंटर में जो मैट्रिक्स होती है उसमें हम वही पाथ मेंशन करते हैं जो सबसे कम कॉस्ट वाला होता है। The matrix shows for each source destination pair of nodes the identity of the next node on the route. मैट्रिक में हमेशा वो नोड शेयर होते हैं जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन में अगला नोड कौन सा होगा। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है यहाँ पे वर्क स्टेशन ए बी सी डी, यहाँ पे 4 वर्क स्टेशन है और इन वर्क स्टेशन के बीच में node number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 nodes that are connected to each other. There are 4 workstations connected to the node, like workstation A is connected with node 1, workstation B will connected with node 3, workstation D is directly connected with node 6 and workstation C is connected with node 5. Now let's suppose among the 4 workstations there may be any source and any destination node. So let's suppose workstation A is the source node or source stations that want to deliver the data, and the destination station is suppose C. So A interested to send the data frames, data packets, and C will receive the data frames. So A and C having a network architecture having 6 nodes. The number which are lies on the edges that are called cost. So as you can see in the diagram, node number 1 and 2 are directly connected with one edge, and on the edges there is a cost showing here like 2. So it is a cost of bandwidth. If data transfer from node 1 to 2, then the cost will be 2. If data transfer from node number 2 to 6, then the cost will be 1. So whatever the values that are showing onto the edge, that is a cost, and it is calculated with the help of bandwidth or a links that are connected between two nodes. So 2, 1, 4, 2, 4, 6, 2, 2 and 5. These are the cost. Now suppose station A sends data, so it becomes the source station, and station C receives the data, so it becomes the destination destination station. Now there are so many nodes are connected, but which one gives the shortest path? Which one gives the least cost path that we have to create? Because the network architecture is not changing, workstations are fixed, nodes are fixed, so we have to create a central routing table. So in the right hand side, we have created a central routing table in which left hand side we have shown here from node, and the right hand side or the top there is two node. So from become the source and to become the destination. So we can send data from any stations. It may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, because station can transfer to node, B station transfer data to 3. So source node can be anything. It may be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? And destination node may be anything. It may be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what we are doing here, maybe node number 1 interested to send data to 2. So source become 1 and destination become 2. It may be possible node number 1 interested to send the data to node number 6.
So source node become 1 and the destination node becomes 6. So there must be a neighbor node or a adjacent node that are connected directly with the source node. So here from node we have mentioned node number 1, 2, 3, 4, 5, 6. It may be anything. Source node can be anything and the destination node can be anything from 1 to 6. Now let's understand what are these values and how it is calculated. Till now we have understand source node may be 1 to 6 and destination node may be 1 to 6. Suppose source node is 1 and destination node is 1, then there is no least cost path because source and destination is the same node. There is no need for any extra node or a path. Now let's move ahead. Suppose source node is 1 and destination node is 2. Now we have to transfer data between 1 to 2. So adjacent, we have to look the adjacent node which provide least cost path. So here adjacent node is directly 2 because 1 is directly connected to 2 and 1 is directly connected to 3. But destination node is not 3, so we will not take adjacent node 3 here because we want to deliver data packets from node number 1 to 2. So adjacent node or neighbor node of 1 is to be 2. So central routing table, central routing dictionary always contain the next adjacent details of node. So it will contain the next leg, next node. So the basic information what we want to explain to you, if node 1 sends data to node number 2, it will be go via 2. Similarly, let's move ahead. Source node is 1 and destination node is 3. Source node is 1 and destination node is 3. Then the adjacent node will be node number 3 because source is 1 and destination is 3 and 3 is directly connected to 1. So there will be a least cost path from source 1 to destination 3. Let's move ahead. Let's suppose destination node is 4 and source node is 1. Now we have to find the adjacent node. So if we want to deliver data from node number 1 to node number 4, source is 1 and destination will be 4. There is two adjacent node. 2 is directly connected to 1 and 3 is directly connected to 1. So there are two adjacent node of node 1, 2 and 3. But we want to go at node number 4. Now which one provide the least cost? If we calculate from 1 to 2, there will be a cost 2 and suppose 2 to 4, there will be cost 4. So 2 plus 4 that is 6. So from source node 1 to the destination node 4, if you want to deliver data from 1 to 4, the minimum cost is 6. If we choose neighbor node 2. Similarly, if we choose neighbor node number 3, then the cost will be same 2 plus 4 then 6. So there is no change. We can take any neighbor node. It may be 2, it may be 3. There is no change in the cost, right? So basically we always select the least cost, but if cost is same, you can choose any node. It may be 2, it may be 3, right? So we have choose here 2. So from 1 to 4, if you want to deliver data from node number 1 to 4, we have to choose neighbor node as a 2. Now let's proceed further.
if source node is 1 and destination node is 5. Now let's find out the neighbor node which provide the least cost. So from source 1 to 5, this is the 5. So this is the 5 and this is the source node 1. Now 1 to 5, we have to calculate the source path. Suppose if we choose 1 to 2, 2 to 6, 6 to 5, then cost will be 2 plus 1 plus 5, that is 8. Just wait. Okay. So source node is 1 and destination node is 5. We have to select the adjacent node. It may be 2, it may be 3. So which one provide the least cost? So first of all, we have to create the least cost path, the various least cost path from source 1 to destination 5. So suppose we are choosing 1, 2, 6, 5. It will give 5 plus 1 plus 2, that is 8. Suppose if we choose 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5. So it will give 2 plus 4 plus 2, that is 8. Suppose we will choose 1 to 2, 2 to 6, 6 to 4 and 4 to 5. There is another path. So it will give 2 plus 1 plus 2 plus 2, that is 6. And there is another path 1 to 3, 3 to 5, 6 plus 2. Again the cost will be 8. There is another path, node number 1, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5. So it will give 2 plus 4 plus 2, that will gives again 8. So maximum time we got 8, but there is a one path which gives us 7, and the path will be 1 to 2, 2 to 6, 6 to 4, 4 to 5. If we choose this path, it will gives the minimum cost. So this minimum cost will be coming from node number 2. If we go ahead in this way, so adjacent node of 1 is 2. That's why we have keeping here from 1 to 5, we have to follow via 2 node. And suppose 1 to 6, suppose source node is 1 and destination node is 6, then we have to find the adjacent node which provide the least cost path. So there is a number of path again. So we can go from 1 to 2, 2 to 6. There is one path, cost will be 3, 2 plus 1. There is another path 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6. So if we go in this way, the cost will be 2 plus 4 plus 2. So that is 8. That is maximum path. Suppose if we go by via node number 3. So 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. So it will calculate 6 plus 5 plus 2, 13. So it gives us more cost. So we will not choose that path. So if you calculate more than one path, if it increase the cost, we will avoid it.
So we will choose the least cost path, that will be node 1 to 2, 2 to 6. So because we are reaching our destination via 2, so 2 become the adjacent node and we have to entry 2 into the matrix, right? So we have filled our first row. आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हमें नोड नंबर 1 पे जाना है तो वहाँ पे कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है, कोई भी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है और उसका कोई भी एडजेसेंट नोड अवेलेबल नहीं, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही एक ही नोड है। यदि आपको नोड नंबर 1 से 2 पर जाना है तो आपको वाया 2 जाना चाहिए, वो आपको मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है। यदि आपको नोड नंबर 1 से 3 पे जाना है तो यू हैव टू फॉलो नोड नंबर 3, आपको 3 से होते हुए जाना चाहिए और वो आपको मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम नोड नंबर 1 to 4 देन यू हैव टू फॉलो नोड नंबर 2, आपको नोड नंबर 2 से जाना चाहिए 4 पे, वो आपको मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर 1 से 5 पर जाना है तो आपको 2 से होते हुए जाना चाहिए और 1 से 6 पे जाना है तो आपको 2 से होते हुए जाना चाहिए। तो हर पेयर ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक नोड की डिटेल यहाँ पे आपको मिलती है। इसी तरह से हर एक पेयर के बीच में, जैसे सपोज 2 से लेके 1 पर, 2 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए, 2 से 4 के लिए, 2 से 5 के लिए, 2 से 6 के लिए, यहाँ पर सेकेंड रो तैयार होती है। तो ये वो एडजेसेंट नोड है, वो नेबर नोड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 से, और आपको इन नोड को फॉलो करना होगा अगर आप लीस्ट कॉस्ट पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं तो। इसी तरह से नोड नंबर 3 के लिए आपको एक रो बना के दी हुई है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो 3 से 1 पे जाना है, आपको 1 नोड यूज़ करना चाहिए। 3 से 2 पे जाना है, नोड नंबर 1 के थ्रू जाओ। 3 से 3 पे जाना है, उसका कोई एडजेसेंट नहीं, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नोड है। 3 से 4 पे जाना है तो आपको 4 होते हुए जाना चाहिए। 3 से 5 पर जाना है, आपको नोड नंबर 5 यूज़ करना चाहिए। एंड 3 से 6 पे जाना है तो नोड नंबर 1 आपको यूज़ करना चाहिए। सो हमने किया क्या है, एक फिक्स राउटिंग टेबल यहाँ पे हमने क्रिएट की है, सेंट्रल राउटिंग डिक्शनरी से बोलते हैं। इसमें सबसे पहले फ्रॉम में हम उन नोड को लिख देते हैं जहाँ से सोर्स तैयार हो सकता है, और डेस्टिनेशन में हम उन नोड को लिख देते हैं जो डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि कोई भी नोड किसी भी नोड को डेटा सेंड कर सकता है और उसकी डिटेल राउटिंग टेबल में होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन नेटवर्क आर्किटेक्चर, कितने वर्कस्टेशन कनेक्टेड है, कितने नोड कनेक्टेड है, उन सारी की डिटेल हमें सेंट्रल राउटिंग टेबल में रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी नोड को हम सोर्स मान सकते हैं, किसी भी नोड को हम डेस्टिनेशन मान सकते हैं। तो उस बेस पर यहाँ पर इस तरह से टेबल तैयार होती है, और हमेशा पेयर ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक नोड की डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी जो उसका एडजेसेंट होगा, और वाया वही नोड आपको यूज़ करना होगा जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ बनता है। तो इस तरह से एक टेबल तैयार होती है, हमेशा राउटर इन्हीं टेबल को यूज़ करता है और डिटेल देखते हुए अपना जो पैकेट है वो अगला ट्रांसफ़र कर देता है डेस्टिनेशन नोड पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी सोर्स नोड से कोई भी डेस्टिनेशन नोड पर आप डेटा डिलीवर कर सकते हैं। जैसे सपोज नोड नंबर 6 से अगर आपको 5 पे ट्रांसफ़र करना है तो आपको वाया 4 पे जाना चाहिए। यदि आप वाया 4 से जाते हो नोड, तो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आप नोड नंबर 5 पर अपना डेटा डिलीवर कर सकते हैं। तो ये कहलाती है फिक्स्ड राउटिंग टेबल। इसी एल्गोरिथम को बोला जाता है फिक्स्ड राउटिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट होता है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग अपडेटेड periodically डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कंडीशन। क्योंकि ये डायनेमिक है तो ये फिक्स्ड नहीं हो सकता, इसमें नेटवर्क आर्किटेक्चर टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हो सकता है कुछ नए नोड ऐड हो जाए, हो सकता है कुछ पुराने नोड डिस्ट्रॉय हो जाए या वो वर्किंग में ना हो, इनएक्टिव हो। तो नेटवर्क के कंडीशन के बेस पर उसे periodically अपडेटेड होना चाहिए। इस तरह के एल्गोरिथम्स को हम डायनेमिक एल्गोरिथम्स बोलते हैं। uses protocol like RIP, OSPF and BGP।
तो यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल है जो डायनेमिक एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं या डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं। उनके यहाँ पे नाम मेंशन है। फर्स्ट होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सेकंड होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, एंड थर्ड होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो ये 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो डायनेमिक एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं। अभी हम एक एक करके सारे प्रोटोकॉल की वर्किंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इन प्रोटोकॉल की वर्किंग समझने से पहले ये प्रोटोकॉल जिन सिस्टम में काम करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एक नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करें जिसमें कुछ नोड और कुछ राउटर आपस में कनेक्टेड है। कोई भी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर हो सकता है, कोई एक टोपोलॉजी हो सकती है जिसमें कुछ सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो जिसको हम नोड कहते हैं, और कुछ राउटर आपस में कनेक्टेड हो। तो राउटर और नेटवर्क नोड से मिलकर बना हुआ सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। ऐसे कई सारे ऑटोनोमस सिस्टम हो सकते हैं। डायग्राम में 3 ऑटोनोमस सिस्टम बनाए हुए हैं और ये ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं सेम उसी तरह से जैसे कि हमारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। कभी यहाँ पे कोई राउटर वायरलेस हो सकता है, जैसे किसी एक कंट्री का सर्वर दूसरे कंट्री के सर्वर से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होता है। 2 लैपटॉप आपस में वायरलेस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है नोड से राउटर कनेक्टेड हो, या हो सकता है राउटर से नोड कनेक्टेड हो, या राउटर से राउटर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। किसी न किसी तरह से एक लिंक जरूर होगी जो ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ऑटोनोमस सिस्टम इंटरनली आपस में कनेक्टेड होता है नोड और राउटर के थ्रू। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें अगर इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर यदि हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है और इसका नेटवर्क आर्किटेक्चर टाइम टू टाइम बदल रहा है, यदि राउटर ऐड हो रहे हैं या नोड हट रहा है या नोड ऐड हो रहा है, राइट, इस तरह का अगर कोई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली बदलती है, आर्किटेक्चर बदलता है, टोपोलॉजी बदलती है, तो उस केस में कौन से प्रोटोकॉल काम करेंगे। और अगर हमें एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा। तो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम में 3 प्रोटोकॉल काम करते हैं। फर्स्ट RIP, सेकंड OSPF एंड थर्ड BGP। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर एक प्रोटोकॉल काम करता है RIP, दूसरा प्रोटोकॉल काम करता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रोटोकॉल एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, इसलिए इनको इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। RIP and OSPF is called internal routing protocol। और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल 2 ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल और इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल, इस तरह से हम इसकी कैटेगरी बनाते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, अ सेट ऑफ राउटर्स एंड नेटवर्क मैनेज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ राउटर्स और नेटवर्क को मैनेज कर देते हैं, उसी को हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, और ये किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। राउटर्स विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल। किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही अगर हमें डेटा की एक्सचेंजिंग करना है तो वो कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल से हो सकता है, जैसे RIP हो सकता है, OSPF हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग कर सकते हैं। द ऑटोनोमस सिस्टम ग्राफ इज कनेक्टेड, ये हमेशा आपस में कनेक्टेड होते हैं। बस इसमें कंडीशन ये रहेगी कि वो सिस्टम फेलियर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक ऑटोनोमस सिस्टम में अगर नोड और राउटर आपस में कनेक्टेड है तो राउटर और नोड फेलियर नहीं होने चाहिए। अगर वो फेलियर होंगे तो फिर डेटा डिलीवरी नहीं हो पाएगी। विच क्लास ऑफ प्रोटोकॉल टू यूज इन ऑटोनोमस सिस्टम।
use interior routing protocol to exchange information between routers within an autonomous system. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अगर हमें डेटा की एक्सचेंजिंग करना है तो कुछ इंटीरियर राउटर प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, और वो प्रोटोकॉल्स होते हैं RIP एंड OSPF। इनको हम इंटीरियर राउटर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इंटरनल राउटर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं। use exterior routing protocol to pass exchange routing information between routers in different autonomous systems। अगर हमें एक से ज़्यादा ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एक्सचेंजिंग करनी है, तो हमें एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो ये ऑटोनोमस सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑटोनोमस सिस्टम। सो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से बतानी है और डायग्राम के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेन करना है किस तरह से एक ऑटोनोमस सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है और दो ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। नाउ अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं RIP प्रोटोकॉल की, जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर नोड और राउटर के बीच में डेटा की एक्सचेंजिंग करता है। सो राउटर्स विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम एक्सचेंज मैसेजेस। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूजिंग होप काउंट। RIP प्रोटोकॉल जिस मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है शॉर्टेस्ट पाथ तैयार करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस एल्गोरिथम का नाम होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। और ये एक मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करते हैं और सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम अपना डेटा को डिलीवर करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स एक कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, उसका नाम है होप काउंट। इसका मतलब ये है कि एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को डिलीवर करने के लिए बीच में कितने नोड आते हैं, राइट। आप इसको एग्जांपल से मान सकते हैं कि आप महसाना से एक ST बस निकलती है और अहमदाबाद जाती है, तो महसाना से अहमदाबाद तक वो कितने स्टॉपेज लेती है। अगर वो 3 स्टॉपेज लेकर डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाती है, अहमदाबाद पहुंचाती है, तो वो जो 3 स्टॉपेज है वो कहलाते हैं उसके होप काउंट। तो बीच में पड़ने वाले जितने भी नोड है उनको हम कहते हैं यहाँ पे होप काउंट। और डिस्टेंस वेक्टर एक मैथमेटिक एल्गोरिथम्स है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं। तो RIP प्रोटोकॉल जिस एल्गोरिथम को यूज़ करता है उसका नाम है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, और होप काउंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि कितने होप बीच में आए हैं उनको काउंट करो, कितने नोड बीच में आए हैं उनको काउंट करना पड़ता है। टेबल एंट्रीज अपडेटेड यूजिंग वैल्यूज रिसीव्ड फ्रॉम द नेबर्स। जैसे जैसे नेबर्स आते चले जाएंगे उनकी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम टेबल की एंट्रीज को अपडेट करते चलते हैं। तो होप काउंट अगर बढ़ता जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाती है। जैसे नोड नंबर 1 अगर बीच में आता है तो होप काउंट की वैल्यू 1, नोड नंबर 2 बीच में आया तो होप काउंट की वैल्यू 2, नोड नंबर 3 बीच में आया तो होप काउंट की वैल्यू 3, एंड सो ऑन। So from source node to destination node, it will count the total number of hope. That's why the table entry is updated using values received from neighbors. Maintain timers to detect failed links. ऐसा भी हो सकता है कि एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में कुछ लिंक्स फेल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे टाइमर को मेंटेन किया जाता है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हर एक नोड के थ्रू एक मैसेज नहीं आता है या लिंक्स के थ्रू कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो उसको फेलियर माना जाता है। इसलिए उस नेटवर्क आर्किटेक्चर में सारे नोड और राउटर को एक ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन होती है कि वो अलाइव है, वो एक्टिव है। ये उनको एक इन्फॉर्मेशन करके या एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करके हमेशा अपने नेबर को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि दैट आर अलाइव और एक्टिव। तो यहाँ पे मेंटेन टाइमर्स या टाइमर मेंटेन होता है किसी भी लिंक्स को चेक करने के लिए कि वो फेल्ड है या एक्टिव है। यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ARPANET।
ARPANET एक बहुत फर्स्ट जनरेशन वाला एक इंटरनेट था, इसमें ये यूज़ होता था RIP प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम, स्लो कन्वर्जेंस फॉर लार्जर नेटवर्क। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर नेटवर्क बड़ा हो जाए तो कन्वर्जेंस स्लो हो जाता है। मैंने आपको कन्वर्जेंस के बारे में बताया था कि अगर नेटवर्क टोपोलॉजी बदल जाती है तो राउटर डिसीजन लेने में फेल हो जाता है कि उसको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाए। जैसे सपोज स्टार टोपोलॉजी से अगर कोई पैकेट निकला है और वो रिंग टोपोलॉजी के लिए है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो अगर टोपोलॉजी बदल जाती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर बदल जाता है, तो वहाँ पे राउटर फिर काम करना बंद कर देते हैं या उनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको कहा जाता है स्लो कन्वर्जेंस। तो RIP प्रोटोकॉल क्योंकि एक छोटे से ऑटोनोमस सिस्टम के लिए बनाया है, एक ऐसी टोपोलॉजी के लिए बनाया गया था जो कि हमेशा फिक्स रहती थी। बट यहाँ पर अगर टोपोलॉजी बदल जाती है, कोई बड़ा नेटवर्क आ जाता है, तो वहाँ पे ये स्लो कन्वर्जेंस कर देता है। If a network become is accessible, it may take a long time for all other routing tables to know this after a number of message transfer. RIP की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं होता है, सॉरी, अगर नेटवर्क एक्सेसिबल हो जाता है तो इट में टेक अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत सारा समय ले लेता है, क्योंकि इसको काफ़ी सारे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है कि नेटवर्क एक्टिव है, लिंक्स एक्टिव है, राउटर एक्टिव है, नोड्स एक्टिव है, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसे शेयर करनी होती है। राउटिंग लूप्स में टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी डिटेक्टेड। राउटिंग लूप को भी काफ़ी टाइम लगता है डिटेक्ट होने में, क्योंकि सारे मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और सारे नोड तक ये मैसेज पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए राउटिंग लूप में टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी डिटेक्टेड। काउंटिंग टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है काउंटिंग टू इन्फिनिटी। ऐसा हो सकता है कि कोई पैकेट किसी डेस्टिनेशन मशीन के लिए निकला हो और उसमें हेडर की जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे एक होप काउंट वैल्यू को हमें सेट करना होता है इनिशियली। हमें एक टारगेट रखना होता है कि मैक्सिमम कितने नोड बीच में आने चाहिए डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे जो होप काउंट की वैल्यू होती है वो होती है टोटल 15। तो होप काउंट की वैल्यू अगर 15 है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में 15 नोड आ सकते हैं। अगर 15 से भी ज़्यादा नोड आते हैं तो इसका मतलब है कि उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। उस केस में वो उस नेटवर्क आर्किटेक्चर में घूमता ही जाएगा, साइक्लिक मैनर में वो घूमता ही जाएगा, रोटेट करता जाएगा, बट उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता है। तो ऐसे कई सारे पैकेट्स हैं जिनको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता है और जो अननेसेसरी उस नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बढ़ाते हैं। ऐसे नोड को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक काउंटिंग टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया कि उसके हेडर की इंफॉर्मेशन में एक प्रॉपर होप काउंट की वैल्यू सेट कर दो। तो यहाँ पर हमारे RIP प्रोटोकॉल में जो पैकेट्स होते हैं उनके हेडर में होप काउंट की वैल्यू 15 हम डिसाइड कर देते हैं। इसका मतलब है कि टोटल मैक्सिमम 15 नोड वो ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद भी अगर उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर 15 के पहले अगर उसको डेस्टिनेशन मिल जाता है तो डेस्टिनेशन पे डिलीवर होने के बाद होप काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाती है। तो RIP प्रोटोकॉल में एक प्रॉब्लम है काउंटिंग टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब पैकेट सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन के लिए निकलता है तो उसके हेडर में कोई भी होप काउंट सेट नहीं होता है। होप काउंट सेट नहीं होने के कारण उसे अगर डेस्टिनेशन नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता है और वो साइक्लिक पाथ में फंस जाता है, में कंटिन्यूसली घूमता रहता है क्योंकि उसे डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा है। उस केस को यहाँ पे बोला गया है काउंटिंग टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इसका सलूशन है होप काउंट मेथड। होप काउंट मेथड के अकॉर्डिंग हम उस पैकेट के हेडर में एक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं दैट इज होप काउंट इक्वल टू 15।
जैसे जैसे होप काउंट आता जाएगा वो वैल्यू -1 होती चली जाएगी। तो जैसे एक होप काउंट आता है तो 15 - 1 14, दूसरा होप काउंट मिलता है तो 14 - 1 13, एंड सो ऑन। धीरे धीरे वो होप काउंट कम होता चला जाता है। अगर टोटल 15 होप काउंट उसने विजिट कर लिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू मच बैंडविथ कंज्यूम बाय राउटिंग अपडेट्स। यहाँ पे आरआईपी प्रोटोकॉल के थ्रू जब हम राउटिंग को अपडेट्स करते हैं, इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, तो ये काफ़ी बैंडविथ को कंज्यूम करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के साथ फील होती है। तो वो आपको याद रखना है। एक तो स्लो कन्वर्जेंस, बड़े नेटवर्क के लिए ये स्लो कन्वर्जेंस है। अगर नेटवर्क एक्सेसिबल है तो काफ़ी टाइम लगता है उसे उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने में, क्योंकि उसे कई सारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने होते हैं। राउटिंग लूप्स को डिटेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। काउंटिंग टू इन्फिनिटी एक प्रॉब्लम आती है और काफ़ी सारी बैंडविड्थ कंज्यूम की जाती है राउटिंग अपडेट्स करने के लिए। नेक्स्ट एल्गोरिथम होती है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये भी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करती है और ये भी एक मैथमेटिक्स एल्गोरिथम के बेस पर तैयार होती है जो शॉर्टेस्ट पाथ हमें प्रोवाइड करता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक शॉर्ट एंड स्वीट पाथ ये प्रोवाइड कर देता है। उसी पाथ को फॉलो करते हुए पैकेट डिलीवर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकेंड एल्गोरिथम है हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में OSPF एल्गोरिथम बोलते हैं और ये डायनेमिक एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती है, जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही काम करती है डेटा की एक्सचेंज करने में। वाइडली यूज्ड एज एन इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल इन TCP/IP नेटवर्क। TCP/IP नेटवर्क में एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूट्स अ रूट दैट एनकर्स द लीस्ट कॉस्ट। इसमें ऐसा रूट बनाया जाता है जो कि लीस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ईच राउटर मेंटेन्स या डेटाबेस। हर एक राउटर अपना एक डेटाबेस मेंटेन करता है। डेटाबेस में कुछ टोपोलॉजी हो सकती है ऑटोनोमस सिस्टम की और वर्टाइसेस और एजेस हो सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में वर्टाइसेस और एजेस का कॉन्सेप्ट होता है, सेम हमारे नेटवर्क के अंदर नोड और लिंक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो दो नोड के बीच में लिंक्स होती है, केबल्स होती है। इसी तरह से दो वर्टाइसेस के बीच में एजेस होती है। तो ये एक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है। एक कनेक्टेड ग्राफ में किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ का ही स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो सेम एल्गोरिथम हम अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर डेटा की डिलीवरी करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पर यदि हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के वर्टाइसेस हो सकते हैं। राउटर को हम एक वर्टाइसिस मान सकते हैं और नेटवर्क नोड को हम दूसरा वर्टाइसिस मान सकते हैं। यहाँ पे एजेस भी होती हैं जिसके ऊपर वेट असाइन होता है। टू राउटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। दो राउटर डायरेक्टली एक लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। और राउटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, या फिर वो नेटवर्क से भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं और नेटवर्क के अंदर कुछ नोड हो सकते हैं। A router calculate the least cost path to the all destination network। नेटवर्क में आने वाले जितने भी डेस्टिनेशन नोड है उन सब के लिए राउटर कैलकुलेट करता है लीस्ट कॉस्ट, और ये एक एल्गोरिथम से परफॉर्म किया जाता है। उस एल्गोरिथम का नाम है डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम। ये मैथमेटिक्स की एक एल्गोरिथम है जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है। जैसे आरआईपी में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम यूज होती है मैथमेटिक्स की, वैसे ही यहाँ पर डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम यूज होती है लीस्ट कॉस्ट पाथ बनाने के लिए। ओनली द नेक्स्ट होप टू द डेस्टिनेशन इज यूज्ड इन द फॉरवर्डिंग प्रोसेस। यहाँ पर भी केवल हम नेक्स्ट होप को ही कैलकुलेट करके रखते हैं कि जस्ट नोड नंबर 1 से कौन कनेक्टेड है जिसको हम यूज़ करें कम से कम पाथ बनाने के लिए या कम वैल्यू वाला पाथ बनाने के लिए। तो ये भी केवल नेक्स्ट होप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, नेबर वाले नोड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एट स्टेडी स्टेट ऑल राउटर नो द सेम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। सारे राउटर के पास सेम नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन रहती है। हेलो पैकेट सेंड एवरी 30 सेकेंड टू नेबर्स। इस OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू भी 30 सेकेंड में, हर 30 सेकेंड में
अपने नेबर को एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है मैसेज के फॉर्मेट में कि वो अलाइव है, वो एक्टिव है, वो डेड तो नहीं है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट फ्लोडेड इनिशियली फ्रॉम ईच राउटर। स्टार्टिंग में हर एक राउटर के थ्रू एक फ्लडिंग की जाती है। फ्लडिंग मतलब कि एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। इसे हम कहते हैं LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, जिससे यह पता चल जाता है कि कौन कौन सी लिंक्स एक्टिव है। पैकेट टाइप में यहाँ पे एक हेलो पैकेट होता है जो कि नेबर को चेक करने के लिए यूज होता है कि अगर वो एक्टिव है तो उससे उसकी साइड से भी हेलो पैकेट जनरेट होगा और रिसीव होगा सोर्स मशीन के पास। एंड थर्ड वन होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सटीरियर राउटर प्रोटोकॉल से दो ऑटोनोमस सिस्टम या दो से ज़्यादा ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में डेटा की एक्सचेंजिंग करना है तो हमें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अलाउ राउटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन। एक से ज़्यादा ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग करता है ये। सेंट एज अ मैसेज ओवर TCP कनेक्शन, ये भी TCP कनेक्शन को ही यूज़ करता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए। राउटर टेबल गेट अपडेटेड, यहाँ पर भी राउटर टेबल्स को अपडेटेड रहना पड़ता है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कुछ अलग अलग मैसेज के टाइप्स होते हैं जो वो सेंड करता है और नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को भी अपडेट करता है। जैसे ओपन मैसेज का मतलब ये होता है कि नेबर का कनेक्शन उसके साथ है या नहीं। सो यूज टू ओपन अ नेबर कनेक्शन विथ राउटर। एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में जब कनेक्शन करना है नेबर कनेक्शन, तो वो एक ओपन मैसेज भेजता है। अपडेट मैसेज भेजने का मतलब क्या होगा? यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल रूट। एक ही रूट में अगर कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है तो अपडेट इंफॉर्मेशन सेंड होगी। कीप अलाइव मैसेज क्यों सेंड किया जाएगा? यूज टू पैरियोडिकली कंफर्म द नेबर कनेक्शन। कंटिन्यूसली उसका जो नेबर कनेक्टेड है, नेबर एक्टिव है या नहीं, उसके लिए यहाँ पे कीप अलाइव SMS या मैसेज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भेजता रहता है। एंड नोटिफिकेशन मैसेज यूज टू नोटिफाई अबाउट सम एरर कंडीशन। अगर उस एरर कंडीशन आ जाती है नेटवर्क में तो BGP प्रोटोकॉल नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू पता करता है। टाइप्स ऑफ एरर कंडीशंस, अगर कुछ एरर कंडीशंस आती है तो नोटिफिकेशन किस किस तरह से आ सकता है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है। तो मैसेज हेडर एरर, इसमें ऑथेंटिकेशन और सिंटेक्स से रिलेटेड बात होती है। ओपन मैसेज एरर में सिंटेक्स और अनरिकॉग्नाइज ऑप्शंस की बात होती है। अपडेट मैसेज एरर, अगर वो अपडेट नहीं कर पाता है तो इससे रिलेटेड मैसेज आएगा। होल्ड टाइम एक्सपायर वाला मैसेज, यहाँ पे जब भी हमें कनेक्शन को क्लोज करना होता है कि उसका सपोज कोई पैरेडिक मैसेज नहीं आ पा रहा है तो हमें उस राउटर के साथ कनेक्शन क्लोज करना होगा, उस लिंक्स को हमें क्लोज करना होगा। इसके लिए हम होल्ड टाइम एक्सपायर्ड इस तरह का मैसेज रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये चार अलग अलग तरह के रिपोर्टिंग है: मैसेज हेडर एरर, ओपन मैसेज एरर, अपडेट मैसेज एरर, होल्ड टाइम एक्सपायर्ड। एंड सीज, जब हमें टोटली कनेक्शन को बंद कर देना है तो एक कमांड होती है सीज। उसके कारण हम राउटर और लिंक के बीच में या राउटर और नेटवर्क के बीच में परमानेंटली कनेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये कुछ मैसेज फॉर्मेट है जो कि एरर आने पर BGP प्रोटोकॉल रिपोर्ट करता है। ये कुछ मैसेज के टाइप है जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपडेटेड करने के लिए या नेटवर्क की अपडेटेड इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या अलग अलग तरह के मैसेज को ट्रांसफ़र करके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को लेते रहता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की, OSPF की और RIP प्रोटोकॉल की। ये तीनों प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है और इस पे शॉर्ट नोट आते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसके प्रोटोकॉल्स, ऑटोनोमस सिस्टम, उसकी डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और RIP, OSPF और BGP, ये तीनों प्रोटोकॉल पे शॉर्ट नोट आपको प्रॉपरली तैयार करने हैं। इसके बाद कुछ और एल्गोरिथम्स है राउटिंग से रिलेटेड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।